My daughter was around 5 or 6 year old, and we were very excited to celebrate her birthday. So a lot of guests were invited, and that day was again an holiday. So we have make a lot of arrangement. Again, just before the cutting of her cake, half an hour before, a call came that a patient is coming with a heart attack, and you have to rush immediately. And somehow the patient was very critical ill, and it take some time to stabilize the patient. Then I did the angioplasty of that patient in the night. So when I came back, it was like 11 o'clock in the night. So all the guests were gone, Right. and the service guys are there only. So they are just waiting for me to do the payments. लेकिन चलो आज कम से कम किसी की लाइफ तो बच गई. Very true. So the things is like this way only. End of the day, एक फैमिली ने कितना sacrifice किया है so that the doctor has reached to this level and he is able to come and treat us when we need the most. आज का जो इंडिया है वो दवाइयाँ बनाने पे और ट्रीटमेंट करने पे फोकस ना करे. फोकस इस बात पे करे कि हम बच्चों के स्कूल करिकुलम में कैसे इस चीज़ को इंटीग्रेट करें कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो डेवलप ना हो. You know, the tiffin for a child, वहाँ से लेके कल्चरल चेंज आना उतना ही ज़रूरी है. You know, when we look at our parents or grandparents for that matter, their lifestyle was very simple. Today a 30-year-old are getting heart attacks. So what has really changed in this one generation or a last decade that we are listening to this, and what went terribly wrong is I want to ask. Hello everyone, and welcome to another insightful episode of Ask a Virtue podcast, where we bring science, clinical wisdom and real-world healthcare conversations together for doctors, patients and caregivers alike. And today's episode is going to feel very personal because we are not talking about something happening out there. We are talking about something happening to us, our lifestyle, our habits and our daily routine. Because let's be honest, we all know someone in their late 20s or early 30s who already has diabetes, high blood pressure, weight issues, or even worse, heart problems. And the scary part, this wasn't normal a generation ago. And to break this down, we have with us Dr. Gautam Swaroop. He is a distinguished interventional cardiologist and director of cardiac sciences at Tender Palm Super Speciality Hospital in Lucknow. With over a decade of experience, he has significantly contributed to the region's interventional cardiology and enhanced heart care services. He is one of the top cardiologists in Lucknow, India. Thank you, sir, so much for joining us today for this conversation. I think, sir, this topic is in a way very common, but in a way it is so different. And I think who better than you joining us for this. So it is indeed our pleasure to have you for this. Thank you so much. Thank you so much. So, sir, before I move into the first question related to lifestyle and all, this is personally I'm very curious, you are considered and you are one of the top cardiologists in this region, and that is for a reason, that you have done so many things so differently, which has never happened before. So, we are very curious as all the viewers, if you can share some thoughts on this. You are right that I have done several procedures first time in Uttar Pradesh. And some of them are like one emerging therapy for the resistant hypertension, in which the blood pressure is not controlled by the maximum uses of the drug. Right. So we use a transcatheter therapy for the control of blood pressure, that is known as the renal denervation therapy. I have used renal denervation therapy first time in EP, and it was the 7th case of India. And I have used in a consecutive 2 patient that is being done in any of the institute or hospitals in the Uttar Pradesh. Wow. Similarly, there is a artificial heart pump that is used in the complex angioplasties in which heart is not supporting the procedure. That is known as the Impella. I have used Impella first time in Uttar Pradesh 4 years back. And I have used the second time as well.
So it is again and different case that was being done in first time in Uttar Pradesh. If you talk about the some new intervention like recently in certain patient in which the heart valve is leaking, that is known as a mitral regurgitation. So in the older patient or some high risk patient in which the replacement of the heart valve is not possible due to the comorbidity. So in that subset of patient, there is a device that is known as the clip or mic clip, and this device is I have used recently, and again it was the first time in Uttar Pradesh. Wow. That 2 patient I have done, and this was the first time in UP, and the both patient was very critically ill patient in which I have tried. I have done the sheathless angioplasty first time in Uttar Pradesh. Wow. I have done the resolvable stent, that is a new stent for the younger patient who has come with the heart attack. The unique feature of that stent is it dissolved into the body. Oh. So it came first time in the India by the Indian company, that is Merrill. I have used one of the maximum stents in the India Wow. till now. So we have given a lot of benefit to the younger heart attack patient to that newer stents. Wow. So the list is very long, but I have done lot of procedures that is being done by the first time in Uttar Pradesh in any of the institute or hospitals. So that's really, I mean, amazing and commendable. I mean, I think this has to, come out in public so often that there are cardiologists like you who have been doing procedures for the first time. And this also makes me understand that you are very visionary. If you can share some thoughts on interventional cardiology, because, we have always heard that interventional cardiology, apart from science, it is more of an art as well. So I think, what are your thoughts on this for future? You are very correct in that sense, because if you see the growing pattern of this field of the cardiology, that is intervention cardiology, it rises exponentially with the introduction of the newer devices in which very critically ill patient, very sick patient, high risk patient, we are saving the life day in and day out. So true. So my vision towards the intervention cardiology to do or introduce the newer things into the field of the intervention cardiology, especially in this state, because somehow financially we are not so much comparable with the southern part of the India. So there are much constraint here in terms of the health sector, but gradually it is improving day by day. So my idea or my thought process towards the intervention cardiology to introduce the newer thing in this state, and definitely I am in that mind that the newer generation of the cardiologists should learn the newer thing as well. So true. So I am running different programs for the younger intervention cardiologists in my hospital to learn the newer techniques, to learn the newer things, and it is kind of the train the trainer program. Okay. So it is my passion that the newer cardiologists that is coming into the field of medicine, and they learn something from me. So I am more into it, and it is very much of my interest. Wow. I mean, so listening to you, really makes me feel that, an accomplished cardiologist like you, learning is something which you have kept constant. And I think that is the reason, what keeps you going. So, learning is a two-way process. One has to understand that the learning is not a unilateral process. True, absolutely. And you teach something or somebody that you sometimes in between discussion, you came to know that I have also learned from that person that you want to be learned. So again, it is a mutual process. Absolutely. And, so this makes me very excited to, deep down, get into the conversation, what we have chosen today, which is on lifestyle, because I'm sure coming from you will make, a lot more sense and a lot more credible, that people will feel that, okay, it is coming from one of the best in business from a cardiologist like you. So I'll move right into the first question that, when we look at our parents or grandparents for that matter, their lifestyle was very simple. Home cooked food,
much more physical movement than what it is today, lesser stress as compared to what it is today. And they rarely had, all these lifestyle diseases like diabetes or heart issues at the age of 30, I would say. They had, but I think what we hear that at early age it is happening, we have never heard of it. But today a 30-year-old are getting heart attacks. So what has really changed in this one generation or, a last decade that we are listening to this, and what went terribly wrong is I want to ask. So, partially you have answered my question, but the answer of your question is like, if you see, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. Absolutely. अगर मैं बहुत शुरुआत से तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो ह्यूमन स्पीसीज़ हैं वो एप्स के साथ जो है हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ. अब सबसे पहले एप्स आए और एप्स के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो ह्यूमन स्पीशीज़ इवॉल्व हुई. राइट. जो इवोल्यूशन का प्रोसेस था वो उस प्रोसेस में क्या था, फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती रही और ब्रेन डेवलप होता रहा. दैट इज़ वाई द एप्स बिकम ह्यूमन. दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ द इवोल्यूशन. और ये स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10th और क्लास 12th के वहाँ से भी वो पढ़ना शुरू करते हैं, इसको जानते हैं. तो हमें उसकी ओरिजिन से समझने की ज़रूरत है कि आज जो हमारी जनरेशन जिस जगह पे खड़ी है वहाँ पे हम सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कैसे कम किया जाए और ब्रेन को कैसे ज़्यादा यूज़ किया जाए. राइट. मीन्स नाउ वी हैव एंटर्ड द एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Absolutely. We are using Alexa and other gadgets, Google and all. So we are not actually Moving. using our body. We are using brain. That is the basic defect and basic problem that we are creating. So true. So अगर आप lifestyle diseases की बात करो तो इसमें सारी चीज़ों के कनेक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं. राइट. राइट. जैसा आपने शुरू में ही बताया कि पहले हम किस तरीके से रहा करते थे या हमसे एक जनरेशन पहले के लोग कैसे रहा करते थे, तो वो डेफिनेटली वो कितने फिजिकल एक्टिव थे. तब हमारे पास बहुत ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. बहुत सारे लोग पैदल चला करते थे, साइकिल से चला करते थे. यहाँ से हमने अपनी जनरेशन्स को आगे जाते हुए देखा है. Very true. और आज हम इस जगह पे आ चुके हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता. सारे लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं. हम लोग 100 मीटर्स भी जाते नहीं हैं, हम गाड़ियों का यूज़ करते हैं. और अगर हम जाते भी हैं तो उसको बड़े ल्यूक्रेटिव तरीके से हम लोग उसको एक टास्क की तरह लेते हैं कि हम आज मैंने आज इतना वर्कआउट कर लिया, आज मैंने 2000 स्टेप्स चल लिए. तो हम लोग इसको एज अ टास्क लेने लगे, जो कि पुरानी जनरेशन में एक डेफिनेटली एक डेली रूटीन का पार्ट था. सो द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट कि हमने अपने शरीर का यूज़ करना धीरे धीरे बंद कर दिया. और दूसरी क्या चीज़ की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने खाने को जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर दिया. यदि आप पहले के फूड हैबिट्स को देखें तो फूड हैबिट्स में डायरेक्टली जो प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था. सब लोग खेत के से निकाले हुए खाने खाया करते थे. पेस्टिसाइड्स का यूज़ उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था. और जहाँ तक शुद्धता का सवाल है तो सारे लोग जो है वो हेल्दी डाइट्स प्लान पे चला करते थे और वही उसको समझते थे. अब यदि आप आज के डेट की फूड हैबिट्स को कंपेयर करो और आज के डेट्स के यंगस्टर्स और जो आज के डेट के चिल्ड्रन हैं उनको आप देखना चाहो तो अब ये पूरी तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है. प्रोसेस्ड फूड्स आ गए. हम आज प्रोसेस्ड फूड का यूज़ करते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड पार्टनर्स आ गए हैं, जोमेटो, स्विगी एंड XYZ जितने भी हैं, फिंगर टिप्स पे आ गया सब. जी हाँ. तो द प्रॉब्लम इज लाइक वी डिक्रीज्ड आवर फिजिकल एक्टिविटी एंड साइमल्टेनियसली वी इंक्रीज्ड आवर बैड फूड हैबिट्स. सो इफ़ यू कंबाइन द बोथ थिंग्स कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी और आपने अपनी फूड हैबिट्स को ख़राब कर दिया.
So true. And third part, it makes a triangle like situation. And third part, पहले इतनी ज़्यादा कंपनीज या जॉब ओरिएंटेशन या इस तरीके की माइंडसेट पहले के लोगों में नहीं हुआ करती थी कि हम अपने बच्चों में बचपन से ही इस बात पे फोकस करें कि वो आगे क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, और कोई भी चीज़ या कोई भी जॉब तब इतनी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं थी। गिनी चुनी सरकारी नौकरियां होती थी और लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहा करते थे। बट द कंडीशन of today's India is entirely different. Very competitive. So it is very competitive. Most of the multinational companies has occupied the Indian markets. They have different goals, different tasks. तो उसमें हमारा जो यंगर जनरेशन है वो अब जो है वो एक मेंटल स्ट्रेस लेके जो है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर कैरियर्स दे आर कैरिंग मोर ऑफ स्ट्रेस रादर देन एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ. Even from school days, I even think. from the school days. So true. So if you can study the mindset of the school going children, you will find that the problem originates from there, and it peaks into the that age in which we have to enjoy our life, we have to enjoy our married life, we have to enjoy our children's life, and we should be a part of that family. But ये भी नहीं हो रहा है. So if you connect all these triangle like physical activity, bad food habits, and mental stress. So true. Then if you combine these three dots, you will find that is the origin of the various problems like blood pressure, like cholesterol, like diabetes, obesity, like obesity. So these all three things originates into the three risk factors. And these majorly these 3 or 4 risk factor contributes to the various heart problem in the India. So it is very simplified thing that I am explaining you कि हम basically हमें काम कहाँ पे करना चाहिए. Right. एक स्टडी हुई थी कुछ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की, उसमें कुछ सैंपल्स लिए गए. इट इज़ अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू. तो उन बच्चों के जो सैंपल्स लिए गए तो उन सैंपल्स में कोलेस्ट्रॉल का जो है वो रिसर्च किया गया, स्टडी की गई कि हाउ द कोलेस्ट्रॉल द लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज हाई. सो द इंटरेस्टिंगली 8 out of 10 cholesterol levels were high. Wow. Why? That's huge. Because most of the parents send their children with the fast food और processed food because कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं और उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, उनके पास समय की कमी है और हमारे पास कोई इसको नियंत्रण करने के लिए प्रोग्राम नहीं है. बच्चे मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है. And the same time they have going back and checked the lifestyle of that children. So उन्होंने ये देखा कि इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे थे जो हाई सॉल्ट इंटेक ले रहे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जिन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पसंद नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने घरों से बाहर निकल के कम्युनिटी में खेलने नहीं जाते थे. That is why they are obese. They have high salt intake in terms of the junk food, and simultaneously they do not prefer the green vegetables or natural things. Wow. So the answer is very simple कि अगर हम 30 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और अगर ऐसा किसी को लगता है कि ये प्रॉब्लम 30 साल में ओरिजिन हुई तो ही इज़ वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो चाइल्डहुड में ही डेवलप हो चुकी है. सो मुझे लगता है कि एक कैंपेन होना चाहिए जिसमें डॉक्टर्स डिफरेंट स्पेशलिटी के, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस होने चाहिए जो कम से कम अपने यूथ को, इंडिया को और जो हमारे हेल्थ सेक्टर में प्लानिंग करने वाले लोग हैं उनको इस बात के लिए सेंसिटाइज करे कि आज का जो इंडिया है वो दवाइयाँ बनाने पे और ट्रीटमेंट करने पे फोकस ना करे. फोकस इस बात पे करे कि हम बच्चों के स्कूल करिकुलम में
कैसे इस चीज़ को इंटीग्रेट करें कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो डेवलप ना हो। जब तक वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं या उनके पेरेंट्स नहीं समझेंगे कि हम आगे आने वाली कैसी नस्लें पैदा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम सब इस बात से एग्रीड हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर। देयर इज़ नो पॉपुलेशन पॉलिसी इन आवर कंट्री। सो इतनी रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, इतनी यंगर पॉपुलेशन का देश अगर इतने रिस्क फैक्टर्स के साथ आगे बढ़ेगा तो अगले आने वाले 30-40 साल के अंदर इन बीमारियों को हम किस लेवल पे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो द मेन द आइडिया इज कि अगर हम 2 रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर ले जाते हैं तो हम 10 बीमारियों को भी कंट्रोल कर ले जाते हैं। वेरी ट्रू। So in terms of the medical expenses of the country, in terms of the various treatments, the cost involved and the life involved, आप किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे तो यदि हम रिस्क फैक्टर पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग अ वेरी ग्रेट हैज़ार्ड in the upcoming years. Sir, you know, the data which you shared is very scary, but at the same time I also feel जो आपने कहा is so true कि हमें कल्चरली एक चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैबिट्स अभी हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट हो गई है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. I mean, all 3 things which we are doing so incorrectly and it has become our habit. So I think right from packing, you know, the tiffin for a child, वहाँ से लेके कल्चरल चेंज आना उतना ही ज़रूरी है. अदरवाइज this young population is going to be tomorrow's productive population, and when your productive population is, you know, unhealthy, I mean, it is absolutely something which is very scary. And I think this is the time that, you know, we need to absolutely start intervening and get this corrected. I think through this platform I'm sure a lot of viewers will be able to understand कि हमारे लिए बहुत सिंपल होता है कि ठीक है, एक दिन अगर चिप्स का पैकेट दिया तो क्या हो जाएगा, बट यू नो इट हैज़ सो मच डैमेज इट कैन क्रिएट इन लॉन्गर रन कि वंस इट गेट्स इनटू योर हैबिट एंड अल्टीमेटली इट इज़ समथिंग विच विल अफेक्ट द नेशन एज होल. जब उसको रेप्लिकेट हो जाता है. सो अवर वेरी सिंपल स्टेप, वी हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड गेट इट corrected, which is so important. So sir, a typical urban professional, you know, let's say someone working in a metro like a city like a Bangalore or Mumbai, Delhi, even for that matter now cities like Ahmedabad, Lucknow, you know, a guy wakes up at 7, rushes through the morning, eats whatever is available, sits for 8 to 10 hours in the office, constant screen time, constant stress, comes home tired, scrolls the phone, sleeps at 1 a.m, sleep deprived, you know, and repeats. I mean, this is going on and on. If you had to pick, you know, which one of these habit is most dangerous and which one is most likely to harm them? I mean, I know all of them are bad, but is there anything, you know, one which you would like to just pinpoint? I would like to, it is not possible to pin the one point again, but I will pick the important points. I will pick the most important points is the food habits. Okay. Definitely. I would pick the most important point is the food habits, because if you are not eating healthy, your gut is full of the harmful things. And this leads to the origin of the various problems like diabetes, like obesity, like hypertension, like cholesterol issues. And see, if you have to pick कि आप एक अच्छे IQ को bad health के साथ चाहते हो या आप एक intermediate IQ को good health के साथ चाहते हो, तो I would prefer कि मैं एक intermediate IQ को good health के साथ चाहता हूँ, because कि वो जितने दिन भी उसकी longevity होगी, उसका at least health के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं होगा. और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो मेल सेंट्रिक पॉपुलेशन है या फीमेल सेंट्रिक, वी कैन से वी आर लाइक इक्वल इन दिस एरा, उसके ऊपर उनकी सेकेंडरी फैमिलीज भी डिपेंड करती है. वेरी ट्रू. सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर पीपल, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, एनीबडी. सो बात यह है कि आप लाइफ में एक बहुत अच्छा सा कोट था कि लाइफ इज़ अ रेस. इस रेस को इतनी तेज मत दौड़ो कि आगे आने वाले टाइम में
आपको अपने खर्चे अपनी बीमारी पे करने पड़े। वेरी ट्रू, सी दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने पहले काम करने के लिए सोचा कि मैं काम करूंगा फिर मेरे को पैसे मिलेंगे। दैट virtual race is a start between your career, your money, your ambition, and your growth. So आप सबसे पहले आपने इसके पीछे इसको चेस करना शुरू किया और आप भूल गए कि मैं क्या चेस कर रहा हूँ। जब आपके लाइफ में आपने खूब सारे पैसे बनाए, वॉट एवर इट इज़ पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, और जब वो उसके बाद जब एक ऐसा टाइम आया जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो उन पैसों से, तो पता चला उस पैसे से आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर रहे हो, उस पैसे से आप अपना शुगर ठीक कर रहे हो, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ गया और आपके सारे पैसे उसके अंदर जा रहे हैं। Very true. So we have to honestly think where we are going actually. So I would pick one point. I would pick the food habits, and second important point that I would pick is the mental status. कई बार mental status की बातें बहुत कम होती हैं। Very true. See, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको मन करेगा कि यार मैं आज बाहर निकलूँगा, अपने दोस्तों के साथ बैठूँगा, मैं कुछ अपने प्लेजर टाइम को बिताऊंगा, या मैं अपनी फैमिली के साथ आज आउटिंग पे जाऊंगा, आज मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आएगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। यू विल सी ना आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, ना आपके शुगर लेवल्स डिरेंज होंगे, ना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ होंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं जिनका कहना है कि मेरे को कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, मेरी फूड हैबिट्स ठीक है, ये है वो है, मैं बहुत कॉशियसली ऐसा करता हूँ, लेकिन द ओनली थिंग इज़ स्ट्रेस। वेरी ट्रू। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी स्लीप साइकिल ख़राब है। आपकी स्लीप साइकिल ख़राब हुई, आपको सुबह जाने की जल्दी है, फिर आप कुछ भी खाना खा के चले जाएंगे। फिर जब आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम कम है तो मैं चलो शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, फिर आपने फिज़िकल एक्टिविटी कम कर दी। और अगर ये बात, इट इज़ वेरी मच फैक्चुअल थिंग दैट इफ़ यू आर गोइंग टू जिम विद अ स्ट्रेस ब्रेन, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। Very true. Your physical activity is only going to work when you are a mentally healthy man or mentally relaxed. Very true. See, medical science के students जो हैं, they must be seeing this podcast. तो वो उनको पता है कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन में ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हेल्दी तभी है when he is healthy with the फिजिक एज वेल एज द ब्रेन। वेरी ट्रू। ये दोनों क्राइटेरिया जरूरी है, एक क्राइटेरिया जरूरी नहीं है। वेरी ट्रू। हेल्थ की डेफिनेशन आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों के साथ, राइट। और अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, यू आर नॉट फिजिकली हेल्दी। सो ट्रू। सो आई वुड सजेस्ट कि लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं 10,000 रुपये कम कमा के और उसके बदले में अपने स्ट्रेस को आधा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ही शुड चूज द सेकंड ऑप्शन। आई कम्प्लीटली एग्री। एंड आई थिंक सर, जो स्ट्रेस है और रिलेटेड टू मेंटल स्टेट, आई थिंक अ जनरेशन अबाउ, उसमें पीपल वर नेवर कमिंग आउट ओपनली। आई मीन वो सप्रेस्ड कहीं ना कहीं रहता था। फिजिकल हेल्थ के बारे में वी टॉक वेरी ओपनली क्योंकि ये है, ये नहीं है, बट स्ट्रेस लेवल्स या फिर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो काफ़ी सप्रेस रह रहा था, विच आई फील नाउ पीपल आर कमिंग आउट ओपनली एंड सेइंग, वी कीप हियरिंग कि अभी जो जेनजी आए हैं, दे आर मोर ओपन अबाउट talking about this work-life balance. So I think somewhere deep down a good balance, what you are saying, is very very important. जो एक स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो रेस है 100 मीटर रेस नहीं है, इट्स अ मैराथन। सो आई थिंक उसमें जितना सस्टेनेबल ऑप्शंस हम लोग चूज़ करें will always make the life See, I am more smooth. completely agree with your point. See, पहले क्या था कि लोग ये बोलते थे कि इंडिया में वेस्टर्न हैबिट जो है वो फॉलो की जा रही है। ये बात है भी, इस समय इंडिया में वेस्टर्न हैबिट्स को फॉलो की जा रही हैं, बट जब आप वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाते हो तो आपको लगेगा कि उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। दे प्रायोरिटाइज देयर सिटीजन्स हेल्थ, कि वो मेंटली हेल्दी कैसे रहें,
Very उनको मुझे कितने टाइम का वर्क आवर देना है, Hmm. मुझे उनको इतनी मैक्सिमम वर्क आवर के बाद उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता। Right. उनको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, उनके बच्चों के करिकुलम में भी क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट हों जिससे वो मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी रहें। Hmm. सो कहीं ना कहीं ये दौर अब इंडिया में भी आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। इट माइट बी कि ये स्टार्ट हो चुका है कि जब ऐसा लोग सोचने लगे हैं कि भाई मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन दैट स्टेटमेंट। आई हैव ऑल्सो हर्ड विद सम न्यूअर जनरेशन पीपल कि अभी क्या है कि आज के लोग अपना रिटायरमेंट प्लान पहले से ही बना के रखने लगे हैं कि मैं इतने टाइम में इतने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रिटायर हो जाऊंगा सो दैट आई कैन एंजॉय माई मनी। Right. दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड इनिशिएटिव। आई विल अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव कि अगर आज की जनरेशन इस तरफ सोचना शुरू कर चुकी है और अगर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस सही से होने लगा Right. तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा बहुत इस रास्ते पे चल सकते हैं कि जहाँ से हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। Absolutely. But simultaneously, I would agree. I will go to the history of the Indian family. See, पहले के ज़माने में स्ट्रेस इसलिए कम होता था कि एक कंबाइंड फैमिली हुआ करती So true. Joint family. थी, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उसमें मदर, फादर, अंकल, नीस, नेफ्यूज जितने भी लोग थे वो एक छत के नीचे रहा करते थे। Right. तो लोगों को स्ट्रेस ही नहीं होता था। सब लोग सारी परेशानियां अपने सबसे डिस्कस करके वो डी स्ट्रेस हो जाते थे। Right. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी वो भी सारी एज अ फैमिली मिलके सब लोग शेयर कर लिया करते थे। तो मुझे लगता है कि समहाउ अगर आगे की जनरेशन अब इस बारे में अगर सोचना शुरू कर दे, जो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे यूनिक पार्ट हुआ करता था, इसको हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। Right. हम लोग बहुत आइसोलेटेड रहने लगे हैं। अब हस्बैंड वाइफ और बच्चा बस एक फैमिली का यही डेफिनेशन रह गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं सर, आपने जो बात कही मतलब आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये कॉन्वर्जेशन आई वाज हैविंग विद माय फादर जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक। वो हमें बता रहे थे कि भाई है, मतलब बहन है, मम्मी पापा है, सब बच्चे एक ही घर में, देयर आर 12-13 पीपल लिविंग। तो वी नेवर फेल्ट, मतलब राइट फ्रॉम एजुकेशन हो या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ हो, तो वी नेवर फेल्ट बिकॉज इट वॉज ऑल शेयर्ड। वी नो के मतलब स्ट्रेस क्या होता था हमने सुना ही नहीं था। सो बट जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी है, आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस पॉइंट। सी इफ़ यू आर इन जॉइंट फैमिली देन कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, डेफिनेटली आपके जो बड़े हैं, आपके जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाते हैं। राइट। बिकॉज कि वो आपके साथ उनका सोल जुड़ा हुआ है। वेरी ट्रू। वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोच सकते। ट्रू। सो दीज काइंड ऑफ एडवाइस इन दिस करंट एरा इज लैकिंग। इसीलिए इंडिया के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, सुसाइडल थॉट्स, दीज आर वेरी कॉमन। जस्ट बिकॉज कि लोगों के मन में चलता रहता है कुछ ना कुछ, दे आर नॉट शेयरिंग दीज थॉट्स टू देयर फैमिली बिकॉज देयर फैमिली आर नॉट लिविंग विद देम। और हस्बैंड वाइफ के आपस के इंटर रिलेशनशिप हैं, both are working in current scenario, so mostly these are the origin of the mental stress as well. True. सर अभी इतनी फास्ट पेस लाइफ भी हो गई है, यू नो पीपल टेक प्राइड इन सेइंग कि आई स्लीप ओनली 5 hours, यू नो, एंड इट्स लाइक अ बैच के मैं सिर्फ 5 ही घंटे सोता हूँ एंड देन आई एम वर्किंग, एंड यू नो इट्स अ रिपीटेड साइकिल विच इज़ हैपनिंग. But what is actually happening inside someone's body if they consistently sleep less than 6 hours? So as a cardiologist, sir, what are your thoughts on this? So see, the duration is nothing. In any literature there is nowhere it is mentioned that the duration of sleep is important. Okay. What is important? The quality of sleep is important. अच्छा. बट अब अगर आप कोई मेंटल स्ट्रेस लेके और ये बोलता है कि मैं 5 घंटे बाद अलार्म लगा के वर्कआउट करने चला जाता हूँ सुबह, और भाई और मुझे ऐसा प्रिटेंड होता है कि मैं बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली अपोजिट. बिकॉज ही इज़ नॉट स्लीपिंग इन अ साउंड स्टेट, ही इज़ वर्किंग because he has to chase the ideal life, like gym life and all these things.
सो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. So if you are sleeping with a good sleep, good quality of sleep, even for 3 hours or 4 hours, practically it is not possible. Right. If you ask me, practically it is not possible. हमारे पुराने जो योगी सन्यासी महात्मा कर लेते थे. क्यों कर लेते थे? क्योंकि उनके पास दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए नहीं थी. उनकी बॉडी एक आइसोलेटेड सोल एटमॉस्फेयर में दिन भर रहती थी. तो दे कैन कंट्रोल देयर माइंड, दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी. दैट इज़ वाई इट इज़ मैंशनड दैट कि जो हमारे ऋषि मुनि या योगी थे वो कम समय में पूरे दिन फ्रेश रहा करते थे. बट प्रैक्टिकली इन दिस कंटेक्स्ट और सिनेरियो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो मुझे ऐसा लगता है एज पर medical guidelines ki at least 7 to 8 hours of sleep is mandatory for anyone. Okay. So what you are saying is it is not important number of hours but important is कि मैं अगर उठ रहा हूँ जब सुबह तो I should feel fresh. And that is एक प्रमाण है कि I have slept well. It's a quality sleep. Yes. So we should जब focus भी आप more सो on के that. उठें अगर आप pleasure से उठ रहे हैं that means you have taken the good sleep. और अगर आप अलार्म लगा के और एक उसको अपने पैटर्न की तरह उठ रहे हैं कि नाउ अभी मैं उठ के ये करूँगा वो करूँगा, I do not think it is a good sleep. Okay, so focusing on quality is more important rather than number of hours that I sleep. And same thing I would say that after the introduction of the social media platforms and this channels like Netflix and other channels, and everybody has phone and the data. So how you can imagine that anybody is going to get a good sleep? They are basically listening or watching the different contents in the night, and then how anybody can say that I am going to take a good sleep with this type of things. So true. So now also here's something I've heard a lot, and our viewers also want clarity on this. People often say, Indians are more prone to lifestyle diseases like diabetes, fatty liver, heart issues, even if they don't look, extremely overweight. They look slim, lean, lagte hai, but they still have these lifestyle diseases. So is it true that there is something about Indian genetics, or it is purely lifestyle, which is affecting? So it is very hard to say. But I am partially agree that now we can say that it might be gene-related issues, because now it is 2 or 3 generations since then we are seeing the problem is continuing day by day. But mostly I would say it is a lifestyle problem, because that I have already explained you that if you are living in a fresh air, if you are having no worried about your job and the future, you are eating a good food directly from the farms, and you are away from the social media, and you are away from the stress. If you can eliminate all these things, you will automatically see that your life span is already at least 10 years become ahead. Wow. So it is a very clear thinking that we all are responsible for it. Right. And mostly, but again, I would answer the familial problem that in most of the patient, they came into the OPD and they say कि डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मेरा कुछ फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, मैं तो ओवरवेट भी नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और वर्कआउट भी करता हूँ. But most of the time we see their lipid levels are deranged. So most of the patient come with a familial history. Familial hypercholesterolemia is a disease in which we find that the high LDL level. Right from early age. Right from the early age. Going to do some researches on my center as well, that we are constantly observing some patterns in which we can state that it might be related to some genetical problem as well. But if you ask me the percentage, I would say that 80% it is lifestyle problem and 20% it is related to some genetical problem. So sir, आप जो कह रहे हैं कि एक लोडेड गन है जो बेसिकली मेरे जेनेटिक्स है, बट ट्रिगर तो लाइफस्टाइल ही है. ट्रिगर दबाऊंगा
तो ही it will fire. Absolutely So correct. ultimately, Absolutely correct. lifestyle is my controllable. Is Absolutely correct. What you can't change your genetical thing. what? Right. You can't Right. change your genetical thing. But if you came to know that the doctor is diagnosed that you are living with the genetical things, that then your responsibility is doubled. Lifestyle, so true. Then your responsibility is doubled because you are already living with the risk factor that you can't Right. control, that you have to be more careful than the ordinary public. Very true. Very true. Completely agree, sir, to this. So that is our controllable Yeah. lifestyle, and I think we should make sure that we, have a right lifestyle, a healthy lifestyle. So, sir, today a lot of people are getting married late, unlike the previous generations, जो हमेशा कहते हैं कि टाइमली मैरिज हो जाना चाहिए. Focusing on career, financial stability, planning their kids in mid-30s or even later. Now, from a lifestyle and a medical perspective, does delayed pregnancy planning have any long-term impact on mother or the child? 100%. बिकॉज अगर आप देखें तो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी एक डेफिनेटली एक एज बनाई गई है कि आप जब यंगर जनरेशन में होते हो तो आपकी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होती है. जब आप 20s से 30s में आते हो तो डिफरेंट होती है, 30s से 40s में डिफरेंट होती है. और एज अ जनरल रूल वी ऑब्जर्व दैट द आफ्टर 40s जो है हम एक प्लेट्यू और पीक पे पहुंचते हैं और उसके बाद जो है वो बॉडी में हर एक सिस्टम का डीजनरेशन जो है वो शुरू हो जाता है. राइट. दैट इज़ द वन पार्ट ऑफ थिंग. सो अगर आप कोई भी चीज़ को लेट करते हो, उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से लेट करते हो, तो डेफिनेटली योर बॉडी विल नॉट बिहेव जैसा कि एक आइडियल कंडीशन में होना चाहिए. राइट. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो डेफिनेटली जो ऐसे लोग हैं, अच्छा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? We have to find out the reason. Absolutely. So the reason is that कि now females or male दोनों they are more ambitious, they are more career centric, they also want to enjoy their life first, and they do not also want to take the responsibility. Why? Right. Why do not want to take responsibility? Because of the nuclear family. उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अकेले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभी कैरियर की डिफरेंट प्लानिंग है. इट माइट बी अ म्यूचुअल कंसेंसस, इट माइट बी वन ऑफ द स्पाउस कंसेंसस. तो जब आप इस प्रक्रिया को लेट करते हैं तो इस प्रक्रिया की कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाती हैं. सो आप आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अब टेस्ट ट्यूब बेबी का कितना ज़्यादा जो है वो इस समय प्रचलन हो गया है. मुझे लगता है कि इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए. इसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए कि जो नेचुरल है दैट विल ऑलवेज रिमेन द नेचुरल. सो हम नेचुरल चीज़ों को सप्रेस कर रहे हैं और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं. और डेफिनेट सी बात है, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग आर्टिफिशियल इट विल नॉट रिमेन नेचुरल. सो ऐसे पेरेंट्स में जब हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप अपना मेडिकल चेकअप करा के आइए. तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट वी आर गेटिंग लाइक उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, उससे भी ज़्यादा तो वो स्ट्रेस में है. सो मेनली दे आर कमिंग विथ कि मेरा एक बार सेशन फेल्योर हो गया, 2 बार सेशन फेल्योर हो गया, नाउ आफ्टर 14 years हम वापस मुझे प्रेगनेंसी वापस से हुई. तो आई वुड डिस्करेज दिस थिंग एंड आई विल कंडेम दिस थिंग इन फैक्ट कि मुझे लगता है कि ये हम लोग अगेंस्ट द नेचर जाके काम कर रहे हैं. क्योंकि हर चीज़ की एक एज डिफाइंड है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग दैट इफ़ यू आर creating your responsibility in the latter half of your life, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब आपको उनकी एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, दैट द टाइम यू माइट रिटायर फ्रॉम योर सर्विस. So you can't take the responsibility of the more important thing that is
being waiting from the for you when your body will not support. So true. फिर पता चला कि आपका बच्चा ही इस लायक नहीं है कि वो आपकी बीमारी का बोझ उठा सके. So that is a very important point that we have to understand कि हमें at least अपनी जनरेशन को तब एक्सपेंड कर लेना चाहिए जब तक हम हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं. Right. So And I think nature has created that cycles, and I think we need to stick to that nature. The cycle जैसे of तो the हमारे nature which is शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो बाल्यावस्था आती है, फिर गृहस्थ जीवन आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है. सबकी उन्होंने एज को डिफाइन किया हुआ है. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हम इंडिया इज फुल ऑफ, इट इज रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो डिफाइंड है. बट अनफॉर्चुनेटली जो जेन जी है, यंगर जनरेशन है, they do not want to read, they do not want to listen our old Indian mythology or thoughts or things or patterns or traditions. But I think what you are saying is absolutely correct. So we need to basically respect the cycle and the time periods which are created. I mean, just delaying responsibility is not the solution. Yes. I mean, in fact, I think people should be more encouraged because that time you are very productive. Yes. Early age you are productive, you have time and you are able to face all the adversities with much more bravery rather than the later age. Yes. When your body is not keeping up to your expectations. And again the one small observation is like जो भी लेट एज में जिन लोगों ने अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट किए, तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं दे आर अफेक्टेड विद देयर ब्रेन, देयर IQs एज वेल. सो अगर आप सोचो तो ये कितनी बड़ी एक तरीके से मुझे लगेगा कि ये गलती है या विडम्बना है कि आपने अपनी गोल को अचीव करने या अपने थॉट प्रोसेस की वजह से अपनी नेक्स्ट आने वाली 60 साल 70 साल या 80 साल के जनरेशन की जो है वो पैटर्न को खराब कर दिया. तो अगेन वी आर responsible for this and we we have responsibility. Absolutely. I think coming from you, people will take it more seriously, and at least I'm sure through this platform the people listening should make sure that we should respect the nature, the cycle which is created. Absolutely. So let's talk about food, very important when it comes to lifestyle. But honestly people are now very confused क्योंकि अभी WhatsApp University, something diet plans coming from which is not credible sources, कीटो के बारे में बात हो रही है, लो कार्ब के बारे में बात हो रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात हो रही है, नो शुगर के बारे में बात हो रही है. People don't know now what to follow, what not to follow. So for a normal Indian household, जो एक दाल रोटी सब्जी राइस, what is the honest simple truth? What should they actually do and what should they avoid? To let us. So it is very interesting question. It is very interesting question. Right. See, if you go in depth of all these lucrative WhatsApp University and the different things, आपको ऐसा लगेगा कि सारी क्राइसिस के अंदर ना एक पीछे से एक इंडस्ट्री चलती है. Very true. पीछे से एक इंडस्ट्री चलती है जो आपके माइंडसेट के साथ खेल रही होती है. Absolutely. उससे किसी को पैसे का फायदा हो सकता है, होता है, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है. तो मुझे उस सिस्टम का ब्रेन कैसे कैच करना है और उसके थ्रू जो है मुझे अपनी इंडस्ट्री कैसे प्रोड्यूस करनी है. सी इट इज, आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनीवन, इट इज लाइक द फार्मा इंडस्ट्री और इंटरवेंशनल इंडस्ट्री एज वेल. अगर हम प्रॉब्लम को रोक दें तो हमें दवा बनाने की जरूरत नहीं है. राइट. बट अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह बात करो तो आपको लगेगा यार लोग बीमार ही नहीं बनेंगे, तो फिर दवा की इंडस्ट्री या इंटरवेंशनल इंडस्ट्री चलेगी कैसे. सी बट यहाँ पे हम कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी प्रॉब्लम जो आपने पूछी कि डाइट की अलग अलग तरीके के जो एडवाइजेज हैं जो इंटरनेट पे गूगल पे चलते हैं वो क्यों हैं. सी आप किसी भी डाइट को पकड़ लो, बट आप इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट के फेनोमेना को भूल जाओ. राइट. आपने जितनी भी चीज़ अपने पेट में डाली उतनी एनर्जी आपने आउटपुट नहीं दी.
कोई सेंस नहीं बनता है। आप कोई सी भी डाइट यूज़ कर लो, ट्रू, इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़ कर लो, आप जो नई दवाई आई है आजकल GLP-1 एनालॉग उसको यूज़ कर लो, और आप जो है वो कीटो डाइट यूज़ कर लो, वीगन डाइट यूज़ कर लो, कोई भी। इट इज़ ओनली सिंपल थिंग दैट बॉडी का एक इक्विलिब्रियम है, योर इनपुट शुड बी इक्वल्स टू आउटपुट। राइट, वेरी ट्रू। आप पहले आप खाना इसलिए खा रहे मेरा वजन ना बढ़े, और बदले में आप स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हो। आपकी सुबह से शाम तक अगर आपने देखा तो आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, आप उसका यूज़ नहीं करते। आपको अगर बोल दिया जाए कि नहीं आज आप प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक कन्वीनियंस से सफ़र करोगे, आप कर नहीं सकते। आपको बोला जाए कि आज आप धूप में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा स्वेटिंग आने दे, आपको हो नहीं सकता। देन द सिनेरियो इज़ यू आर लिविंग इन अ नॉन मोबाइल वर्ल्ड जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, एंड आप उस तरफ से आपने अपनी आंखें हटा रखी हैं। अब फोकस आप इस बात पे कर रहे हो कि मैं ऐसा क्या खाऊं। राइट, सी इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, कि अगर आप इनपुट आउटपुट एनर्जी के एक्सपेंडिचर का बैलेंस नहीं करोगे। पहले के ज़माने में जो हमारे पुराने जनरेशन के लोग थे, उनके पास इतना थॉट प्रोसेस कहाँ था। आई एग्री। द ओनली कॉन्सेप्ट इज कि वो अपने खेतों में मेहनत करते थे, वो दिन में पसीना बहाते थे, वो उनके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होती थी, वो पूरी नींद लेते थे, वो जो भी खाना खाते थे एटलीस्ट वो प्योर खाना खाते थे। राइट। इन दिस डे आप कोई सी भी डाइट की बात कर लो, एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक योर फोन, open the Blinkit or any app and then you have to just click and order. Right. इंडिया में somehow ये चीज़ नहीं है कि हम कौन सी चीज़ को कितनी प्योरिटी में खा रहे हैं। सो इसलिए द प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ये जान लिया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये जॉब सेंट्रिक या फिर एम्बिशियस पॉपुलेशन है, जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी आज की डेट में सेकेंडरी है, बाकी सारी चीज़ें प्राइमरी है। अब उससे जो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है उसको एड्रेस करने का दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ एड्रेसिंग द थिंग्स। राइट। तो आई थिंक जो आपने कहा इज सो ट्रू। आई मीन समवेयर डीप डाउन सर हमें सबको पता भी है, बट कहीं ना कहीं हम लोग वो मानने को तैयार नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लाइक मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो मुझे खर्चा भी करना है, तो जो मैं कैलोरीज खा रहा हूँ मुझे वो एंड ऑफ द डे आई नीड टू मेक श्योर दैट आई बर्न इट आउट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो वॉट एवर आई ईट, बट जब तक मैं फिजिकल मूवमेंट या फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, आई थिंक इट विल ओनली बिल्ड अप। कोई पैसे कमाता है तो everything is related with your time. So you don't have time because you have to do your job, you have to get the promotion done, you have to keep growing, you have to prove someone, your colleague or your boss or anybody else that you are much capable with your brain. So आप पैसा कमा रहे हैं, उसके बदले में आपके पास टाइम नहीं है, उससे आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, फिर आपने खाने की अपनी फूड हैबिट्स को गलत किया, फिर अब आप उसके सोल्यूशन खोज रहे हैं कि अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए कि मैं अपना वेट को कैसे कम करूं। सी द थिंग इज लाइक कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर या जो भी हैं इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री बोल सकते हैं या फिर जो ये डाइट इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री बोल सकती हैं, ये सब लोगों ने इस चीज़ को जान लिया है कि हम अपनी प्राइमरी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। राइट। बट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कीप मूविंग। जो ऐसा होता है कि 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी को जिम्स फुल होते हैं, बट 31 जनवरी को जिम वही खाली हो जाते हैं। अब वो अगर हम लोग कंसिस्टेंट रखें 100% मतलब, तो आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड देन एंड देयर, विच इज़ सो ट्रू। सर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, स्लीप, लाइफस्टाइल, but I feel like one group of people who constantly live in that high pressure environment are doctors themselves. So as we are moving towards the end of this conversation, I would like to ask you that, long hours, emergency calls, life and death decisions, I mean, your is the, I think, most stressed profession in which you are into. And top of that, expectation from patients, khud ka family, society. So I want to ask you something which is very real. In today's fast moving world,
how do you manage your work-life balance, or is it something, very honestly, that you are also struggling? Because I think work-life balance, if you are able to achieve somewhere, I think any profession can achieve, because I think this is the most demanding profession in which you are into, where you are on your toes, I think 24/7. So how do you manage? So honestly speaking, again, not me. Every cardiologist is struggling with the same thing. That is a normal public is struggling. Why we are struggling? We also want कि जो है वो पेशेंट कम हो जाए, ऐसा हमें लगता है. जब पेशेंट ही कम रहेंगे तो शायद हम अपने आप को समय दे सकते होंगे. लेकिन you are in a tunnel in which right from the beginning of your day you are treating the countless life, and being a challenging profession, I would rank top in the cardiologist. Very true. Because कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कभी आपके पास ऐसा कॉल आता है कि भाई एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, एंड वी ऑल नो दैट कि हार्ट अटैक के अंदर समय का इम्पोर्टेंस क्या है, गोल्डन आवर क्या है, जिसमें हमें एक डेफिनेट टाइम के अंदर उस पेशेंट को कुछ ना कुछ करके जो है उसकी लाइफ को बचाना है. Absolutely. तो जब यहाँ पे ये थीम आ जाती है तो बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं. Very true. या तो आपकी फैमिली, या तो आपके बच्चे, या तो आपके पेरेंट्स, या तो आप खुद, कि आपको कभी ऐसा लगता हो कि यार ये भी कुछ समय होता है जो शायद मैं अपने हिसाब से स्पेंड करता. यहाँ पे भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने डूज एंड डोंट्स बना लिए हैं कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ. इट इज़ ट्रुथ. बट देर आर सम डॉक्टर्स जिनके अंदर सेंसिटिविटी लेवल्स ज़्यादा हैं, जो अपने आप को एक तरीके से इसको एक ऐसी सर्विस के रूप में लेते हैं जिसमें किसी जिसको हम पैसे से जोड़ के नहीं देख सकते. हम ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई अगर हम आज इस प्रोफेशन में हैं कि मेरी वजह से या मेरे जैसे किसी डॉक्टर की वजह से किसी की फैमिली का एक मेंबर जिंदा रह सकता है, तो मुझे लगता है कि उसके आगे फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती. लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम लोग अपने रियल लाइफ में आते हैं, जब हम अपनी फैमिली में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो है वो लैकुना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दर्द तो फैमिली में रहता है, बच्चों में भी रहता है कि जो टाइम हम लोग उनको दे सकते हैं, उनकी एजुकेशन को दे सकते हैं या उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, वो शायद नहीं कर पाते. ये बात सही है. बट दूसरी बात ये जो मैं लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ, किसी लाइफ के डिफरेंट स्टेटा में बहुत सी जॉब हैं, बहुत सी अदर जॉब हैं. लोग मतलब इंजीनियर भी बनते हैं, लोग दूसरे फाइनेंशियल प्रोफेशन में भी रहते हैं, लोगों के स्टार्टअप्स भी रहते हैं. लेकिन मेडिकल प्रोफेशन दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है कि उस प्रोफेशन को किसी भी प्रोफेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता. Absolutely. जब आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ बचाते हो, जिसको लगता है कि हाँ वो तो हार्ट अटैक से आया था, उसकी जान जा सकती थी, और आज वो खुश होकर अपनी आंखों में आपके प्रति ग्रेटिट्यूड लेके जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो जितनी भी हमें कष्ट होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को शैटर करने से या फिर अपने घर वालों को ना दे पाने से, वो पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हमें उसमें कमी महसूस होती है कि हाँ कम से कम हम ऐसे लोग तो हैं कि जिनकी चर्चा अपने घर में लोग करते हैं कि हाँ लाइफ में कभी मेरे को हार्ट अटैक आया और उस डॉक्टर ने मेरी जान बचाई. तो मुझे ऐसा लगता है, ये अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों को इससे इंस्पायर होना चाहिए. मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस एक बहुत लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है, बहुत समय लगता है एक डॉक्टर बनने में, डिवोशन देना पड़ता है, हार्डवर्क बहुत है, अपनी फैमिली लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. लेकिन यदि हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हट जाएं या पीछे हट जाएं, या हम उसको एज अ मनी मेकिंग या एज अ प्रोफेशनलिज्म की तरह देखें, तो फिर ये जो दुनिया का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. और कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम भगवान के बाद डॉक्टर्स के पास ही है. वेरी ट्रू. और उन डॉक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट के पास है. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन दैट सेंस यही एक ऐसी प्रेरणा है जो हम लोगों का काम करने के लिए फोकस्ड रखती है, एनर्जेटिक रखती है. और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से हम हेल्दी रह पाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का
हम लोगों को डी स्ट्रेसर सा लगता है कि जब आपकी मेहनत से किसी की जान बच जाती है, उनके फैमिली मेम्बर्स को आपके अंदर ग्रेटिट्यूड दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी जो पीछे हमारी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी होती है, हम लोग थोड़ा सा उससे बैलेंस कर सकते हैं उसको। So true. So that's actually very honest what you have said. And sir, we also do believe, because we see very closely life of cardiologist especially, and we know कि अगर एक आम इंसान ये नहीं कर सकता है, हमारा तो वही फीलिंग आता है, but still it keeps them going through decades and decades, and that I can totally understand that end of the day when you go to bed, it is that sense of satisfaction that somebody's life is saved every single day. And I think absolutely hats off and salute to cardiologists, I mean all the doctors, but yeah, especially all the cardiologists, because they have actually kept the ecosystem in place. I mean with their sacrifices, I think so many people are living at कुछ घटनाएं होती हैं जो लाइफ में थोड़ी इंटरेस्टिंग और याद सी रह जाती हैं। लाइक टू शेयर वन ऑफ माय मेमोरी इन अ शॉर्ट वे। Absolutely. कि माय डॉटर वाज अराउंड 5 or 6 year old, and we were very excited to celebrate her birthday. So a lot of guests were invited on her birthday. So we were very excited, and that day was again on holiday. So we have make a lot of arrangement. Again, just before the cutting of her cake, half an hour before, a call came that a patient is coming with a heart attack, and you have to rush immediately. So at that time, I don't have any choice. Absolutely. So I leave that program and I rush to the hospital. And somehow the patient was very critical ill, and it take some time to stabilize the patient. Then I did the angioplasty of that patient in the night. So by all these things managing, when I came back, it was like 11 o'clock in the night. So all the guests were gone. Right. And the service guys are there only. So they are just waiting for me to do the payments. So I just reached the home. So everybody has went. My daughter was waiting, wife was waiting there. And there people are there कि डॉक्टर साहब अब मेरे को जाने दीजिए, मेरा भी काम ख़त्म हो गया, मेरा पैसे दे दीजिए तो हम लोग भी घर जाएं। सो आई फील वेरी बैड कि यार इतने दिन से ऐसा प्लान किया और अभी, लेकिन फॉर द सेम टाइम आई फील द सेटिस्फैक्शन दैट यार चल आज कोई बात नहीं, इस बार बर्थडे नहीं मना पाए, अगली बार मना लेंगे, लेकिन चलो आज कम से कम किसी की लाइफ तो बच गई। सो द थिंग्स इज लाइक दिस वे ओनली। सो दिस ये हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि यही एक टॉनिक है और यही एक इंस्पिरेशन है कि इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं। सर आपको जब मैं सुन रहा हूँ तो डीप डाउन आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कितना फैमिली का सेक्रीफाइस इसमें इन्वॉल्व है। आई मीन फॉर us to get the services from the doctor, they save life of course, but end of the day एक family ने कितना sacrifice किया है so that the doctor has reached to this level and he is able to come and treat us when we need the most. So I think it is hats off not only to the doctor, but I think more thank you to the family, which are supporting the doctor so much. Definitely, I am very much agree with you that कि अगर डॉक्टर्स की फैमिली सेक्रीफाइस ना करे तो वो डॉक्टर एटलीस्ट अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। एंड इट बिकम्स लाइक एक्सपेंडेड फैमिली कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड इस वजह से हो जाती हैं कि भाई मैंने कभी किसी टाइम में उनका लाइफ बचाई और उनको आज उनकी लाइफ के फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, हेल्दी हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अवसर जीवन में भगवान नहीं दे सकता कि आपकी जो कोर फैमिली तो है ही है, साथ में एक बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है। राइट, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दिस इज ओनली गॉड्स ग्रेस, which is it comes giving you the power to keep going. 100%. And we all wish more power to you. Thank you so much. So sir, as we come towards the end of this honestly an eye-opener conversation and very heart-to-heart interaction, I would say, because the biggest takeaway for me is
we are not victims of our lifestyle, we are creators of it. And small daily choices are silently shaping our health. Sir, thank you so much for sharing not only the medical perspective, but I really felt, it came absolutely from the heart. And, we could connect through heart, and I'm sure our viewers too will be able to. So I think a lot of people needed to hear this today from you, both the personal side of it and the lifestyle, which as a topic we had chosen today. And to everyone viewing, if this episode made you think even a little, that's your signal to act. Start small, stay consistent, because your future health is being built today. So also don't forget to like, share and subscribe to Aska Virtue podcast and share it with someone who might benefit from this knowledge. Until next time, this is Aska Virtue podcast, where awareness meets action. So thank you so much once again for joining and sparing your valuable time for this. Thank you so much. Thank you.